پہلا دورہ ہے جاپان کا، اور خوش قسمتی یہ ہے کہ پہلا دورہ بھی ہے، زندگی کا پہلا دورہ ہے، بحیثیت آپ کا وزیر خارجہ بھی پہلے دورہ ہے۔ یہ ہمارا جو فارن پالیسی کا ایک کوشش رہا ہے کہ ہم اپنا اکنامک ڈپلومیسی پہ زور دیں، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بنیادی فلسفہ رہا ہے جہاں تک ہمارا خارجہ پالیسی، وہ ٹریڈ اوور ایڈ کا جو فلسفہ ہے اس پہ ہم فوکس کرتے آ رہے ہیں، اور اس ٹرپ کا مقصد بھی یہی کہ ہم کس طریقے سے آپ کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، اور جاپان کے عوام کے لیے ایک ہمارا ڈپلومیٹک ریلیشنز میں اضافہ کر کے، ہمارا اکنامک ریلیشنز میں اضافہ کر کے کیسے ایک دوسرے کے عوام کو فائدہ پہنچا سکتے۔ تو ہمارا 3 مین ایریاز ہیں جو ہم جگہ جگہ پاکستان کی طرف سے جس پہ ہم زور دیتے ہیں۔ ایک جو ہمارا زراعت ہے، ایگریکلچر ایکسپورٹس ہے، خاص طور آج کل ہمارا آم کا سیزن ہے، پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کے آم میرا خیال میں پکانا چاہیے، تو یہ ہمارا ایک خصوصی فوکس رہا ہے۔ اور یہاں ویسے جاپان میں بھی اسٹروک ہے، تو بٹ اوور آل انٹائر ایگریکلچر سیکٹر، خاص طور پہ جیسے ملک جیسے جاپان میں جہاں ان کے پاس اتنا زیادہ زمین نہیں ہے، ان کا میرا خیال میں ایک میوچلی بینیفیشل ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا اور جاپان کا ایگریکلچر سیکٹر میں ہمارا کوآپریشن کا اضافہ ہو، ہمارا ایکسپورٹس کا اضافہ ہو، چاہے ہمارا میٹ ہو، ہمارا یہ سبزیاں ہو، پھل ہو، جو بھی، تو وہ ایک پازیٹیو وہ ایک اوور آل فوکس ہے جو ہوتا ہے، لیکن ہمارے جاپان میں اس کا فوکس ہونا چاہیے۔ دوسرا، جاپان تو دنیا کا جو ٹیکنالوجی سیکٹر ہے اس میں ایک لیڈر ہے، اور پاکستان میں خاص طور پہ آئی ٹی سیکٹر میں بہت ہی پوٹینشیل ہے اور انٹیپ پوٹینشیل ہے۔ تو یہ ایک دوسرا سیکٹر ہے جس میں میرا خیال میں اگر ہمارا دونوں ممالک کے درمیان ہم اس سیکٹر میں بھی تعلقات کا اور انگیجمنٹ کا اضافہ ہو تو ایک دوسرے کے فائدہ ہو سکتا ہے۔ مگر جو تیسرا سیکٹر جس پہ ہم خاص طور پہ زور دے رہے ہیں، ہمارا امبیسڈر صاحب کو بار بار تنگ کرتے ہیں، اور مختلف ممالک میں ہم اس اسپیس پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کا پاپولیشن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، خاص طور ہمارا یوتھ کا ایک یوتھ بلج ہے، 65% ہمارا جو پاپولیشن ہے یوتھ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو روزگار کی ضرورت ہے، اور ہمارا ریجن میں، اور اونلی ہمارا ریجن، دنیا بھر میں ان کا ایجنگ پاپولیشن ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں ان ممالک جہاں ایجنگ پاپولیشن ہے، ان کے ساتھ پاکستان کا جہاں ہمارا یوتھ کا پاپولیشن میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کے درمیان بہتر تعلقات کی ضرورت ہے، اور ہم ان سے بات چیت کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیسے ایک دوسرے کے پازیٹیولی اور پریکٹیکلی کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ جب ان کا ایک ایجنگ پاپولیشن ہو تو ان کو ینگ مین پاور کی ضرورت ہے، سیمی اسکلڈ مختلف کاروبار سے تعلق رکھنے والے ان کی ضرورت ہوتا ہے، اور اس کے لیے چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ یورپ ہو، جاپان کا کافی ایجنگ پاپولیشن ہے، اور آگے جا کے جو ہے چین میں بھی جس کا اکانومی اپگریڈ ہو رہا ہے، جن کا ایک نیا ٹریجیکٹری ہو رہا ہے، ان کے ساتھ بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کا مین پاور ہے، اور پاکستان کا جو مین پاور کا ایکسپورٹ ہے اس میں اضافہ ہو۔ جاپان میں کافی گنجائش ہے، ان کا گیٹنگ آف دا ٹاپ آف مائی ہیڈ لیکن کافی 4 ملین کا ایک اسپیس ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے لیے اور پاکستان میں ہم پاکستان کے نوجوانوں کو یہ موقع ملے کہ اس اسپیس کا فائدہ لیں۔ آپ
यहाँ आके काम करे, आपकी तरह यहाँ आके काम करे और पॉजिटिवली जो है यहाँ की मीशत को भी फ़ायदा दिलवाए और पाकिस्तान को भी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करे। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि मैन पावर के कॉन्टेक्स्ट में भी हमारा कोऑपरेशन का इजाफा हो। इसलिए एक ट्रिप में तो नहीं होता है, मगर ब्रॉडली मैं समझता हूँ कि ये 3 जो एरियाज हैं ये इनमें काफ़ी पोटेंशियल है, ख़ास तौर पे इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के लिहाज से पाकिस्तान और जापान की बायलैटरल रिलेशनशिप में। बाकी आपसे हम चाहेंगे कि जो आपके मसाइल हैं, जो आपके इश्यूज़ हैं, वो आप ज़रूर ख़ास तौर पे हमारे एम्बेसडर के साथ इंगेज होते होंगे, लेकिन इनके साथ इंगेज करके हम चाहेंगे कि हमारा ये एम्बेसी तो आपका एम्बेसी है और इनका तो एक पहला जिम्मेदारी ये है कि आपकी जो मसाइल हैं और आपके जो इश्यूज़ हैं उनको दूर किया जाए और साथ साथ जो है हमारा दोस्त ममालिक के साथ अपना ताल्लुकात में इजाफा करे, उसमें एक दूसरे के लिए मौके ढूंढे एक साथ ताल्लुकात रखने के बजाय हम हर किसी के साथ इंगेज करें। कभी कभार किसी का आपसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, कभी बार किसी और का आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन आपका अगर मुसलसल इंगेजमेंट हो, आप अपना क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो इसमें बहुत फ़ायदा होता है। और जब आप मुआशी अंदाज में देखते हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट से देखते हैं और एक दूसरे के जो सिटीजन्स हैं वो आपकी बायलैटरल रिलेशनशिप की वजह से और अपने कारोबार की वजह से खुद पैसा बनाना शुरू कर देते हैं, तो वो फिर एम्बेसडर्स बन जाते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। वो अपने तौर पे आपके जो बायलैटरल ताल्लुकात है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो इस अंदाज के साथ और इसी सोच के साथ हम ये जिम्मेदारी संभालते रहते हैं। हम आप सबके शुक्रगुजार हैं कि आप भी यहाँ हमारा पार्टी का नुमाइंदगी भी करते हैं, पाकिस्तान का नुमाइंदगी भी करते हैं और वज़ीर ख़ारजा भी आते जाते हैं और एम्बेसडर्स जो हैं वो भी आते जाते हैं और आप मुसलसल इधर होते हैं और आप हमेशा जो है पाकिस्तान के सिर्फ एक किस्म के सफ़ीर बन के, नुमाइंदा बन के इधर रहते हैं भी हैं और आपके किरदार की वजह से और आपकी रेपुटेशन की वजह से फिर हमें मज़ीद गुंजाइश बनता है कि हम और पाकिस्तानी इसके लिए इस किस्म के मौके पैदा कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो जापान और पाकिस्तान की जो अवाम है, काफ़ी हमारे दरमियान सिमिलैरिटीज़ हैं। जिस तरीके से हमारे लोग मेहनती भी हैं, यहाँ जापान के लोग भी बहुत मेहनती हैं, जिस तरीके से अपने लोग जो है पाकिस्तान में वो अपना सकाफत का लिहाज करते हैं, अपने बड़ों का लिहाज करते हैं, उनका जिस उनके ऑब्वियसली मज़हब तो अलग अलग है, लेकिन जिस तरीके से और जिस अंदाज से सकाफती लिहाज से और ट्रेडिशन के लिहाज से काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं और हमें ये देखना चाहिए कि हमारे दरमियान सिमिलैरिटीज़ क्या है, ना कि डिफरेंसेस। के साथ इंशाअल्लाह ताला कल में इनका वज़ीर ख़ारजा के साथ हमारा तफसीली इंगेजमेंट होगा और उसके बाद हमारा जॉइंट स्टेटमेंट होगा, जिससे हम आपके सामने हमारा बात की उसका कंक्लूजन भी रखेंगे और आप फिर यहाँ से जब हम निकलते हैं तो एम्बेसडर साहब के लिए काम छोड़ेंगे, इसको फॉलो अप करें और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि अगर हम सही तरीके से जो एशियन रीजन है, पिछले साल में जो एशियन रीजन फोरम है उस पर भी किया था, कोशिश हमेशा होता है, टाइम नहीं मिलता, लेकिन हमें एशियन रीजन में जिस तरीके से पाकिस्तान को इंगेज करना चाहिए हम अभी तक नहीं कर रहे हैं और बहुत तवज्जो की ज़रूरत है, ना सिर्फ फ्रॉम अ फॉरेन पॉलिसी परस्पेक्टिव but also from an economic diplomacy perspective. आखिरी बात मैं इतना कहूँगा कि ये जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे मई 9 के वाक़यात के बाद जो सूरत हाल बने हैं, मैं समझता हूँ हम सब का जिम्मेदारी है कि आपने तो बहुत कुछ देखा है पाकिस्तान की तारीख,
लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपना मुल्क का सही नुमाइंदगी करें और सही तरीके से जो सही है उस पर हम सच कहें, जो गलत है गलत कहें। मगर जो मे 9 का वाक़या स्पेसिफिकली हुआ है, आप सबको पता है, आप यहाँ जापान में रहते हैं, आप अगर कल ये फैसला करें कि आपने एहतजाज करना है और इस एहतजाज का हिस्सा में आप इनका जो फौजी इंस्टॉलेशंस हैं या इनका जो जनरल हेडक्वार्टर्स हैं उस पे जाके कोई हमला करना चाहें तो वो जमहूरियत के नाम पे आपको इजाज़त नहीं, और ना यहाँ का सोसाइटी चल सकता, ना हमारा सोसाइटी चल सकता। मगर कुछ बेसिक जो है रूल्स ऑफ द गेम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो बहुत कुछ देखा है और हमने हमेशा जमहूरियत के लिए जदोजहद किया, मगर कभी इस तरीके से कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं किया है। और आज का पूरी दुनिया में एक ये पोस्ट फैक्ट पॉलिटिक्स का पॉपुलिस्ट सियासतदान का एक इफेक्ट नज़र आ रहा है। और जहाँ अमेरिका जैसे 200 साल पुराना जमहूरी मुल्क का जमहूरियत को हिला, हमारा जो टूटी फूटी जमहूरियत है उसके लिए भी एक बड़ा पूरा एक्सपेरिमेंट रहा है। इसको हमारा निज़ाम को, हमारा मुआशरे को एक इम्तिहान से गुजारा है और अब हमारे ऊपर है, सारी सियासी जमातों पे एक जिम्मेदारी है। अभी ये मसला हुआ है, बिल्कुल ये भी ज़रूरी है कि रूल ऑफ लॉ के मुताबिक जिन्होंने कानून तोड़ा है उनके वो कानून के मुताबिक उनका केसेस चले, क्योंकि साथ साथ हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस सफ़र को आगे लेके जाएं और आगे लेके जाते हुए हमारी ये कोशिश होना चाहिए कि हमारा जमहूरियत में बेहतरी आए, ज़्यादा टॉलरेंस आए, ज़्यादा स्पेस हो, ना कि इस किस्म की इंसिडेंट की वजह से हम खुदा न खास्ता कोई पीछे हटे। तो एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रिया। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।